Did you know that the trade volume between UK and Pakistan as of 2025 was $5.5 billion? Other than all the other critical factors, networking, collaboration, and strategic events sit at the heart of such business. कि इंटरनेशनल ट्रेड की हम जब बात करते हैं तो इस तरह के इवेंट्स ज़रूरी क्यों होते हैं? मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड दैट्स प्राइमरीली द पॉजिटिव एंड द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, उसको ओवरकम करने के लिए वी नीड टू गो इनटू दीज लेंस एंड वी नीड टू पार्टिसिपेट इन सच फोरम्स, सच इवेंट टू make Pakistan a bigger, bolder and better projection out of it. From a business perspective, what are they going to get out of it? For any brand or for any individual, this type of event is very important, where you can collaborate, where you can network. Usually such summits are just limited to meeting people, taking pictures and just wrapping it up. There is some prestige associated participating in them as well. I totally agree with that to some extent. Not the focus should be on that only. The focus should be getting the outcome, but having that as a secondary value could be facilitating thing for you or for the business who is participating, right? If the participants need any kind of support post-event, what does UPTIB does in that regard? जब हमने पाकिस्तान बिजनेस समिट 2025 किया और उसके बाद पोस्ट इवेंट जो हमने एक्टिविटीज की, शायद यही वजह है कि 50% वो लोग हमारे साथ दोबारा पाकिस्तान बिजनेस समिट में सेकेंड टाइम जा रहे हैं. Do you guys have any prerequisites for the participants as well? If a business is qualifying as per whatever criteria you guys have said, how easy for them to join it? Okay, so Assalamu alaikum and welcome to another episode of Startup Pakistan podcast with Yusra Hamid. I'm going to start with a very interesting economic fact. Did you know that the trade volume between UK and Pakistan as of 2025 was $5.5 billion? And what's more interesting is that other than all the other critical factors, networking, collaboration, and strategic events sit at the heart of such business. इसी हवाले से आज हमारे साथ दो बहुत esteemed guests मौजूद हैं from UK Pakistan Trade and Investment Board. We're going to be mainly talking about the business summit that's happening in January 2026. Assalamu alaikum Azhar, assalamu alaikum Noman. So we have Noman Rasool with us, who's the marketing director at UPTIB, and we have Azhar Waraich, who's the managing director at the same organization. How are you guys? Wonderful. Thank you for having us. Acha, I'm going to dive right into the business summit because that is the highlight of everything around UK-Pakistan trade these days. I know that this event is very significant both in terms of establishing connections as well as collaboration between different businesses. To begin with and set the stage for the audience, I want to understand कि international trade की हम जब बात करते हैं तो इस तरह के events ज़रूरी क्यों होते हैं? What significance do these summits and networking events hold? Great. Thank you for having us, first of all. And it's a pleasure to be here. Straight diving right into your question and answering that, of course. मेरे ख्याल से जो सबसे important चीज़ है, that is a big thing that we are actually missing out from the last few decades. And that's primarily the positive and the soft image of Pakistan that I believe. Doing such events, representing Pakistani business community in such forums and maybe participating on their behalf and representing the potential and business potential that Pakistan got. Of course, that as actually you mentioned already, that we have 5.5 billion exports with the UK only, and along with that we have been working with the European markets as well, and we are, as of 2024, we have $2.16 billion trade volume with European Union, and similarly a few millions with the Switzerland specifically. So considering all those aspects, I believe this is the key and strategic time that we do collaborations and we do take these people who don't have that right exposure और उनको हम यहाँ से एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन करके, एक बेहतर तरीके से मार्केट करके और एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करके हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी बिल्डअप कर लें और हम उसकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हाईलाइट कर लें. एंड स्पेसिफिकली टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर्स ऑफ कोर्स, उनके लिए भी ये भी एक एडवांटेज हो जाएगा, एक एडेड वैल्यू हो जाएगी कि दे आर ऑलरेडी डूइंग बिजनेस इन विद इन पाकिस्तान, बट वी नीड टू रीच आउट टू इंटरनेशनल मार्केट्स नाउ. अगर हमने सस्टेन करना है इकोनॉमिकली, आपको पता है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरह के हैं एंड हाउ चैलेंजेस आर बीइंग मेट, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए वी नीड टू गो इनटू दीज लेंस एंड वी नीड टू पार्टिसिपेट इन सच फोरम्स, सच इवेंट्स, सच कॉन्फ्रेंसेस to make Pakistan a bigger, bolder and better projection out of it. When you say that, I really want to understand for the people who are participating in this forum, from a business perspective, what are they going to get out of it?
how are they going to leverage this networking or the networking that's going to happen during the event? Actually, by endorsing the Numan's viewpoint on this particular fact, positioning is very important for any business identity or any individual. The position is very important. The seeing is believing. So this is the time where you are having competition, and if you want to win and survive in this competitive world, one should have a competitive advantage. So UK Pakistan Trade and Investment Board has emerged as a premier facilitator and organizer for executing and organizing such events. So for any brand or for any individual who is going to be position himself or herself on a showcase a platform or international platform, so this type of event is very important, where you can collaborate, where you can network, और जहाँ पे आप socialize कर सकें, लोगों से मिल सकें और अपने ब्रांड की positioning कर सकें. और मेरा ख्याल है कि यही एक गैप है जो कि पाकिस्तानी मार्केट का, और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक प्रीमियर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर ग्लोबल स्टेज के ऊपर आए, तो आपको इस तरह के इवेंट्स में ना सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, बल्कि वहाँ पे अपना पॉजिटिव इमेज भी देना है और अपना पोटेंशियल भी आपने शोकेस करना है. सो अगर कोई भी बिज़नेस जो है मैन है, वो अपनी डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है, इंपोर्ट्स अपनी जो है वो या इंपोर्ट्स को बढ़ाना चाह रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए ये राइट प्लेटफॉर्म है कि वो जो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और ग्लोबल स्टेज के ऊपर अपने आप को मनवाए. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस. I think visibility is the key here. That It's very important. You're getting yeah. visibility internationally. Even though you guys have touched upon this already when you're talking about the forum itself, I really want to understand that every event has some agenda or theme or vision behind it, right? Other than the breakdown के ये discussions हैं, ये guest participants हैं. I know that for 2024 आप लोगों की theme थी Together for a Prosperous Pakistan, and for the upcoming summit, you guys are focusing on Pakistan beyond borders. What's differentiating the two themes, and what's the vision behind each of them? Great, good question. I would like to, identify from the past, of course, when we had conducted this first ever Pakistan Business Summit on the sidelines of the World Economic Forum 2025 annual meeting. The focus was one, to represent Pakistan as a collaboration with a lot of stakeholders, including the government side, including the private sector, and a lot of other organizations which are working for the betterment of Pakistan and for the global image, right? So that was the key reason behind that particular theme, the Together for Prosperous Pakistan, because we really want to see, as since we were struggling that Pakistan is on a critical stage and is going through a crossroads and everything. And we really want to come up with something that actually, make Pakistan prosperous, right? And for that, we need to combine our energies, right? When we combine our energies into synergies, definitely nobody is going to stop Pakistan from being a very good economy, having a $1 trillion economy maybe in the coming years, inshallah. Maybe by 2030, that's the vision. But still, that was the key factor and the key, thought behind the Together for a Prosperous Pakistan. But for now, of course, as of 2026, when we are going to execute our second Pakistan Business Summit on the same during the sidelines of the World Economic Forum annual meeting, 56th, it's going to be the 56th annual meeting. And unfortunately, Pakistan has just represented on maybe, I think, 10th of, events, and not more than that. So it's happening from last 56 years. So you can see the, importance and the significance of the event as well. Yeah. So I think उसको अगर हम ज़हन में रखें, और now is the time कि हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उनको हम पोर्ट्रे करें, उनको हम अपने बॉर्डर्स की जो हमारी एक सिग्निफिकेंस है उसको पीछे छोड़ते हुए वी कैन गो ग्लोबली, हम उनको क्रॉस करें और उनको हम इंटरनेशनली दुनिया को रिप्रेजेंट करें कि हमारे पास पोटेंशियल क्या है, ऐसी कौन सा रिसोर्स है जो पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं है. यू स्टार्ट विद द वेदर, यू स्टार्ट विद द मिनरल रिसोर्सेज, वी आर रिच इन रिसोर्सेज. आप कोई चीज़ उठा लें, कोई सेक्टर उठा लें, आप टूरिज्म उठा लें, आप IT उठा लें, आप टेक्सटाइल उठा लें. Pakistan is one of the leading exporters in textile, right? Pakistan is booming with the IT sector, right, at the moment. उसके साथ साथ आप टूरिज्म को देख लें, हमारे पास स्विट्ज़रलैंड से कम आई थिंक कोई ऐसे एवेन्यूज़ नहीं है जहाँ पे आप गिलियाद चले जाएँ, आप हुंजा चले जाएँ, आप स्कर्दू चले जाएँ. आई थिंक वी हैव फैसिनेटिंग breathtaking views in Pakistan. But still, the problem lies where we need to, represent Pakistan as
that, right? So when we are going to do that, we are definitely going to achieve this theme, the perspective behind this theme, the Pakistan Beyond Borders, so that people would come in. We should go out and see how things can collaborate and how we can network and how we can take advantage of that. Absolutely. And adding on the fact that Together for a Prosperous Pakistan was the last theme when we thought about this initiative in 2024. And recently in January 2025, we have executed the first edition of Pakistan Business Summit. And I think choosing that theme, Together for a Prosperous Pakistan, because we are going to launch that first time in Davos, and we selected that venue because Pakistan is there. Pakistan की वहाँ पे presence थी, वहाँ पे existence थी, लेकिन बहुत छोटे level पे थी. और we got independence from India at the same time. और हम जो भी competition होते हैं, और हम इंडिया की बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे रहे होते हैं उसमें. और इंडिया जो है वो वहाँ पे हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, वो MOUs कर रहा है, वो पार्टनरशिप्स कर रहा है. और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ कि इंडिया हर साल अपना एक प्रोविंस जो है वो शोकेस करता है वहाँ पे, ठीक है. और उसके इंडिया के कम से कम 4 से 5 डिफरेंट पेविलियंस, डिफरेंट वेन्यूज़ के ऊपर जो है वो इवेंट साइडलाइंस पे हो रहे होते हैं. ऑल्दो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑन द गवर्नमेंट लेवल इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स इवेंट एज वेल. लेकिन हर साल एक पर्टिकुलर कंट्री को लेके आना और उसके प्रोजेक्ट्स को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को और उसके पोटेंशियल को शोकेस करना, ठीक है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. और हम जो हैं वो एक छोटा सा इवेंट करें 2 घंटे का, 3 घंटे का, और पाकिस्तान आ जाए, तो ये एक ऐसा गैप था. और इतने बड़े इवेंट पे, जो कि दुनिया का मेरा ख्याल है सबसे प्रेस्टीजियस और सबसे बड़ा इवेंट है, जहाँ पे आपको 100+ कंट्रीज़ की जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिल रही है. यू कैन नेम एनी ऑफ द बिजनेस लीडर अक्रॉस द वर्ल्ड, वो वहाँ पे मौजूद होगा. आपको सारे ब्रांड्स वहाँ पे मिलेंगे. आपको गवर्नमेंट लेवल पे जो है प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे मिलेंगे. तो Together for a Prosperous Pakistan was the welcoming theme or a note by inviting every single individual, okay, let's go together to Davos, ठीक है. And now we have established stage over there, and this is the second year. Now we have reached the border, और अब हम पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट एक दफ़ा कर चुके हैं. नाउ दिस इज़ द सेकंड टाइम जहाँ पे पाकिस्तान का पेविलियन लग रहा है. और आई थिंक दिस टाइप ऑफ इवेंट और इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स हैं, इट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑल द बिजनेस कम्युनिटी लीडर्स, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स एंड इन्वेस्टर्स एज वेल, ठीक है. क्योंकि बिजनेस मैच मेकिंग जो है, कोलैबोरेशंस जो हैं, वो इस टाइप के इवेंट से ही जो हैं वो होती हैं, फ्रूटफुल एंगेजमेंट्स होती हैं. और मेरा ख्याल है कि इवेंट्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी होती रही है. यूके पाकिस्तान ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने जब अपनी पोजीशनिंग करनी चाहिए 2 साल पहले, जब हमने इसको पाकिस्तान में लॉन्च किया, तो तब जो मेन जो हमारा था वैल्यू एडिशन जो हम करना चाहते थे बिज़नेस कम्युनिटी में, वो यही थी कि हमारी जो नेशन है ना, वो बड़ी फ़ोटो बिलीव करती है. हम किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम कहते हैं कि बस तस्वीरें हो जाएं, और तस्वीरें होने के बाद दिस इज़ द ओनली आउटकम जो हमने वहाँ से लिया है. वो 15-20 तस्वीरें जो हमारा 1 माह या साल जो है वो गुजर जाए, जी हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लिया है, या डिफरेंट स्टॉल्स और लोगोस के आगे पिक्चर्स ले ली हैं. लेकिन हमने जब इसको लॉन्च किया तो हमारा ये था कि हम इससे आउटकम क्या लेके आ रहे हैं, ठीक है. हम कितने MOUs लोगों के साइन करा पाए हैं, हम कितनी मैच मेकिंग्स करा पाए हैं, बिकॉज यूके पाकिस्तान ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड सर्व्स एज अ ब्रिज between all the business communities in order to enhance or promote their trade and investment opportunities. और अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और लैंडमार्क इनिशिएटिव के तौर पे, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको अपनी पोजीशनिंग को जस्टिफाई करने के लिए जो है वो वहाँ पे कुछ फ्रूटफुल एंगेजमेंट्स भी आपको चाहिए. तो हमने अभी भी पाकिस्तान बिजनेस समिट में भी जितने भी लोग हमारे साथ जा रहे हैं, वी हैव कोलैबोरेटेड विद सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस ईदर ऑन द गवर्नमेंट साइड एंड द कॉर्पोरेट साइड और प्राइवेट साइड. उन सब का जो है वो प्रोफाइल बिल्डिंग हुई है, ठीक है. उनकी मैच मेकिंग स्टार्ट है. हम किसको किसके साथ वहाँ पे लाइन, या एवरीथिंग इज प्लान्ड, एंड दिस इज़ द रियल आउटकम एंड नीड ऑफ द आवर, नॉट द फोटो सेशन. वो मेरा ख्याल है बहुत हो चुका. सो दिस इज़ द रियल टाइम और नीड ऑफ द आवर टू सर्व फॉर योर कंट्री and to showcase your country on the top position on the global stage. So this is all about the Pakistan Business Summit. Thank you so much for adding to that, because मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि usually such summits are just limited to meeting people, taking pictures and just wrapping it up. There is some prestige associated with participating in them as well. But what
do people quantifiably get out of it? So the fact that you guys have everything planned already and there is a certain outcome decided as well, I think that adds a certain value to the entire initiative as well. Would you mind sharing कि पिछले 2024 वाले summit में how many businesses did you guys collaborate with, or are there any success stories that you want to share about the previous summit as well that would tell people how successful or how much potential this summit would have? Perfect. आपकी बात को आई थिंक एंडोर्स करूंगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट कि ऑफ कोर्स वैल्यू एडिशन यही है दैट व्हाट यू आर गोना गेट आउट ऑफ दैट. एक तो प्रेस्टीज इट्स इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स उस फोरम का या उस जगह का अपना एक लेवल है. योर ग्लोबल प्रोफाइल गेट्स बेटर, आपकी प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ योर ऑडियंस गेट्स बेटर, आपकी कंपनी की ब्रांड बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट. जहाँ तक अजय साहब की बात थी, जिस तरह कह रहे थे फोटो ऑप्स एंड एवरीथिंग, आई टोटली एग्री विद दैट. टू सम एक्सटेंट I disagree. वो ये कि of course that's important as well in terms of secondary. Yeah, the branding and marketing that we are talking about is important. But on the second side, what needs to be done is not the focus should be on that only, right? The focus should be getting the outcome. But having that as a secondary value could be, you know, a facilitating thing for you or for the business who is participating, right? So मेरे ख्याल से ये बहुत important है कि हम उसको ज़रूर कंसिडर करें, बट इंक्लूडिंग दैट हमारे साथ आउटकम हो. अब जिस तरह लास्ट ईयर की आपने बात की, तो वी हैव सक्सेसफुली मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह विद अ वेरी going for the first time ever and engaging multiple Swiss organizations on board. We have partnered with Swiss Asian Chamber of Commerce from there to facilitate us in terms of matchmaking, in terms of connecting with the right people, and that's before the event. They were the co-host for this particular event as well that we had did in the last 2025. So having those organizations, for example, Swiss Business Council was on board, which is a very leading organization that work with the Swiss business community as well. So what we do is we channelize, we see the profiles of the people, we get that out of them, we see where the a strength lies, where the connectivity lies, और किस इंडस्ट्री की किस किताब. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट राइस, फॉर एग्जाम्पल जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, आप एक राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और स्विट्ज़रलैंड में कोई ऐसी कंपनी है या कोई ऐसा बिजनेस है या कोई एंटिटी है दैट वांट टू इंपोर्ट राइस फूड में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सीरियल्स में बहुत ज़्यादा काम करते हैं स्विट्ज़रलैंड के साथ. सो फोकसिंग ऑन दैट, अब वो बंदा वहाँ पे जा रहा है और उसको आगे से IT का कोई बंदा मिल रहा है, तो ही इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन, राइट? सो वट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू आइडेंटिफाई सेक्टर्स, वट वी हैड डिड एज वेल. और अभी भी हमारी ये मैच मेकिंग चल रही है बिकॉज वी इन द मिडल ऑफ द प्रोसीजर. इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर. आफ्टर आई थिंक 20 days मे बी वी आर जस्ट रैपिंग दिस अप एंड विल बी हैविंग दिस समिट ऑर्गेनाइज्ड. सो मेरे ख्याल से ये सारी वर्किंग जो हम प्रायर कर रहे हैं ताकि जो लोग वहाँ पे जाएं उनको उन्हीं के रेलिवेंट लोगों से कनेक्ट किया जा सके. फॉर एग्जांपल स्विस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग जो आ रहे हैं वो कनेक्ट किए जा सकें. फॉर एग्जांपल स्विस बिजनेस काउंसिल ने जो हमें रिकमेंडेशंस दी हैं फ्रॉम द स्विस कम्युनिटी, वो एंड दैट्स द पर्पस कि हमने इसको 2 दिन पे इसीलिए किया. फर्स्ट डे वी आर हैविंग द स्विस बिजनेस कम्युनिटी नेटवर्किंग डिनर, राइट? सो उसमें हमारा मेन फोकस ही है, वी नॉट होल्डिंग एनी कॉन्फ्रेंस, एनी पैनल डिस्कशंस, एनीथिंग ऑन द साइडलाइंस, नथिंग. We're just giving them a space. We're just inviting them, letting people connect with each other, blend in with each other, and then they take up from there. हम ताकि लोगों की परफेक्ट ये नहीं हो कि सिर्फ आपने कार्ड पहने और घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि यार मैंने किससे मिलना है. एग्जैक्टली, या तो वो प्राइमरीली फोकस्ड है, कस्टमाइज्ड है, डेडिकेटेड है, और वो सारी प्लानिंग के साथ है ताकि जो लोग जा रहे हैं उनको एक फ्रूटफुल आउटकम भी हो. एंड लॉग विद दैट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो स्विट्ज़रलैंड है ही. वो जो बिजनेस पे जा रहे घूम तो लेना ही है, लेकिन हम जो उनको वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो हम UK में भी कर रहे हैं, हम यूरोपियन मार्केट्स में भी कर रहे हैं, वो यही हैं कि हम मैच मेकिंग में बेहतरी ला सकें. That removes a lot of friction. I want to understand in terms of the matchmaking that you guys are performing. Other than connecting businesses with potential collaborators, are there any legal facilitation that this forum could provide? Because most of the businesses that are trying to establish themselves abroad, they're not physically present there. So there are certain hurdles in terms of the legal compliance or other regulations that they struggle with as well. So does this forum facilitate in that regard as well? Yeah, actually, we have a diversified portfolio. We are a group of companies. UK Pakistan Trade Investment Board is one of the sister concern. We have an existence in UK from the last 2 decades. So we have a company over there by the name of IBPC. It's International Business and Professional Corporation, having a portfolio of 300 plus renowned businesses across the UK. We have our own immigration and law firm in UK by the name of Britain Solicitors. And
UK Pakistan Trade Investment Board is a one-stop platform for all the legal compliances and for all the seamless activities regarding to the trade and investment. So either it's a matchmaking, either it's a bridge between, two business communities, or it's a bilateral trade between two countries. We are providing every single, assistance to the individual or to the business community in terms of, starting your own business from there, or to diversify your business there. So जितनी भी legal assistance है वो required है regarding to the business, we are providing to the community, और ये हम अभी still हम कर रहे हैं. ठीक है, हमारे बहुत सारे जो events, तो हमारा एक portfolio है, ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं और हम different events कर रहे हैं. और अभी 2025 में we have executed 4 successful events माशाल्लाह. ठीक है, starting from January 2025, the first Pakistan Business Summit. Then we organized and executed and participated in ITU's events by जो कि United Nations जो है वो जिनेवा में करता है, और ITU is the one of the prestigious agency of the United Nations, International Telecommunication Union, जिन्होंने AI for Good के नाम से किया. And we are the blessed one, क्योंकि पाकिस्तान से पहली दफ़ा कोई मार्केटिंग पार्टनर यूनाइटेड नेशंस के साथ किसी ने उसको पार्टनर किया था, और वो यूके ट्रेड पाकिस्तान ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड था. तो हमारा डेलीगेशन गया वहाँ पे और हमने उसमें पार्टिसिपेट किया. फिर उसके बाद मई 2025 में हमने यूरोप एशिया इकनॉमिक समिट के साथ जो है वो पार्टनर किया, और डेवोस में सेम वर्ल्ड कांग्रेस सेंटर के अंदर जो है वो 3 days की समिट हुआ, जिसमें पाकिस्तान का डेलीगेशन गया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे परफॉर्म किया. उसके बाद श्रीलंका में, ठीक है, 2025 में हमने श्रीलंका में जो है ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप फोरम के साथ मिलके एक इवेंट किया. उसके बाद वी हैव एन इवेंट इन लंदन लास्ट मंथ, ठीक है, 21 and 22 नवंबर को हमने फर्स्ट यूके पाकिस्तान बिजनेस समिट किया. ठीक है, इसके साइडलाइंस पे ये तो इवेंट्स थे जो इंटरनेशनल इवेंट्स यूके पाकिस्तान ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किए. इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी असिस्टेंस है जो हम के प्राइवेट सेक्टर को ऑलरेडी दे रहे हैं. द DHA इज़ ऑन बोर्ड विद अस. हमने DHA के लिए 3 रोड शोज़ की हैं इस साल, और अगले साल जो है मज़ीद उनके साथ कोलैबोरेशंस के साथ हम करने जा रहे हैं. बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके हम सोल marketing partners हैं in UK and Europe. We are going to sell their projects. We are going to sell their projects and initiatives in UK and Europe market. So this is the second domain of UK Pakistan Trade Investment Board. So we are not particularly focusing on the event side only. We are providing assistance and one window facilitation to all the business community around the globe. So यूरोप में भी अभी हमारी पेनिट्रेशन है, और 2026 का जो हमारा वी है, वी आर गोइंग टू पेनिट्रेट सून इन UAE and Saudi market as well, and later on Africa as well. So UK Pakistan Trade Investment Board is a global organization. So जो आपका क्वेश्चन था कि किस किस्म की फैसिलिटेशन है, चाहे वो लीगल कंप्लाइंस हो, लीगल रिक्वायरमेंट्स हो, किसी की रजिस्ट्रेशन, कंपनी की रजिस्ट्रेशन से लेके मैच मेकिंग तक, we are providing all the solutions. And even to add into that, the delegations that we are leading, we are actually providing the visa facilitations as well. Agar for example documentation ki kisi ko, it's end to end. It's a one stop solution. For example, if somebody is willing to coordinate with us and want to attend the event, we provide every information from the scratch. For example, what documents you would be needing, what would be the procedure, how you're going to apply, what are the parameters that you need to look into. If your bank statement needs to be matured, it needs to be matured, because as Pakistanis, we are very, unfortunate to say, but we are very much reluctant in having the proper right documentation. Nobody has, proper returns filed. People don't have the company registrations as well. And exactly. The facilitation is not there as well. So that's where we come into play as well. We provide those as well. And we are taking a delegation of almost 55 people now in Pakistan Business Summit. So all those are being processed by us, of course. And that's the visa facilitation that we are providing. And even as Azhar has mentioned, the organizations that have joined us, and the organization that we are representing, right? For example, FBCCI is on board. They are taking a delegation of theirs to this particular event. The president, Atif Ikram Saab, is leading the delegation himself. And along with that, very few prominent people from the government and the private sectors, including different companies, for example, Chen1, for example, Startup Pakistan being the digital media partner. Along with that, a lot of other companies, Trillion Trees, the brand Injan, and a lot of other companies like that. Okay, I just keep having a lot of questions because there are so many aspects that you guys are covering, and
every time the answer ends तो एक नया सवाल like पुराने भूल जाते हैं और नया सवाल आ जाता है. Right now, I want to understand that for participating in these events, do you guys have any prerequisites for the participants as well? कोई भी join कर सकता है. और एक बहुत ज़रूरी सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि you know, businesses that haven't participated in such events, especially internationally, are a little reluctant to be a part of them. So if a business is qualifying as per whatever criteria you guys have said, but are new, so do you guys provide any facilitation to them as well? How easy is it for them to join in? Okay, so as far as the Pakistan Business Summit is concerned, and the prerequisites in selecting the criteria कि कौन लोग इसको पार्ट कर सकते हैं और कौन सा डेलीगेशन जो होगा, आई थिंक उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप जो है एक अच्छे सिटीज़न है और जाके एक अच्छे जेस्चर के साथ आप अपने बिजनेस को वहाँ प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट इज़ द प्री रेक्विजिट. Scale of the business. स्केल ऑफ बिजनेस इज़ इंपॉर्टेंट. स्केल ऑफ बिजनेस इज़ इंपॉर्टेंट. लाइक हैविंग सेड दैट, देखें जो छोटे बिजनेसेस हैं वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और डेवोस में इवेंट करना इज़ वन ऑफ द, आई थिंक, द एक्सपेंसिव इवेंट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, वहाँ पे स्पेस ही लेना और इवेंट के लिए, उसके लिए आपको कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है, स्विस गवर्नमेंट की अप्रूवल्स की ज़रूरत है, और उसके बाद देयर इज़ अ सर्टेन क्राइटेरिया कि जो वहाँ पे इवेंट्स कर सकते हैं, वरना हम शायद बहुत पहले वहाँ पे पहुँच चुके होते और हर बंदा वहाँ पे इवेंट कर रहा होता. तो एक सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट था कि डेवोस को सिलेक्ट करना और वहाँ पे जाके इस इवेंट को एग्जीक्यूट करना. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन दैट. और लास्ट टाइम क्या सीन था, क्योंकि पहली दफ़ा हम कर रहे थे और हमारे जितने प्रोमिनेंट ब्रांड्स थे, ठीक है, लास्ट टाइम 37 का डेलीगेशन था जो हमारे साथ गया, और बाकी यूके और यूरोप से डेलीगेशन आया. स्विस चैम्बर ने हमारे साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया, और एक अच्छा 140+ का जो है वो हमारा फुटफॉल था वहाँ पे जो समिट पे था. इस दफ़ा क्योंकि हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी थी, 2025 का ऑलरेडी एक हमारा सक्सेसफुल इवेंट था. सो वी हैव अप्रोच्ड द चैम्बर्स, बिकॉज चैम्बर्स में आपके सारे बिजनेसेस हैं. तो चैम्बर्स ने हमारे साथ जो लाइजॉन किया, तो मेरा ख्याल है कि इसमें क्रेडिट उनको देना जो है ना वो ज़रूर देना चाहिए कि उनके पास ऑलरेडी फ़िल्टर्ड एक पोर्टफोलियो है चैम्बर्स का जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. क्योंकि जब आप किसी और कंट्री में जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑनरशिप मज़ीद बढ़ जाती है. ठीक है, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद डिफरेंट एजेंसीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं. तो वो जो बिज़नेस कम्युनिटी की जो फ़िल्ट्रेशन थी ना, वो हमारे साथ बहुत सारे हद तक चैम्बर्स ने कर दी. ठीक है, उन्होंने एक हमें अच्छा पोर्टफोलियो दिया, FPCCI ने हमें 30 जो है वो मेंबर्स का डेलीगेशन दिया. सेकेंडली इसमें ये था कि जो है रिप्रेजेंट अपने आप को करने जा रहा है, उसका स्केल ऑफ बिज़नेस क्या इतना है कि उसने पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर लिया, वो यूरोप की मार्केट को जो है वो जाके एक्सप्लोर कर रहा है या टैप करना चाह रहा है. तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट फॉर द स्टार्टअप्स. ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारे आगे ऐसे करेंगे भी जो कि इनिशियल बिजनेसेस के लिए या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए होंगे. बट दिस पर्टिकुलर फोरम इज़ फॉर द ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड giant or big companies of Pakistan. That is why Numan is mentioning all the big names of the Pakistan business community. तो ये एक prerequisite था. उसके बाद documentation is very important. ठीक है, अब उसमें documentation में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी कंपनी प्रोफाइल भी लग रहा है, आपकी रिटर्न्स भी लग रही हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी लग रही हैं. तो वो itself एक प्री रेक्विजिट है जो कि वीज़ा फैसिलिटेशन के लिए और वीज़ा की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है. सो एनीबडी जो कि उसमें लाए करता है, उसमें फॉल करता है, तो वो जा सकता है हमारे साथ. लेकिन ऐसी कोई सर्टेन हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, हमने हर एक को वेलकम किया है, हमने पूरा उनका केस स्टडी किया है, उनको पूरी फैसिलिटेशन दी है. और अगर हमें लगा है कि ये बंदा या बंदी या ब्रांड या बिज़नेस जो है वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के लिए नहीं है, तो मेरा ख्याल है हमने उन्हें सेकेंड इवेंट रेफ़र किया है. बहुत सारे केसेस ऐसे थे जब हम यूके बिज़नेस समिट कर रहे थे, तो हमें लगा कि नहीं यार, इनको वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे रिप्रेजेंट कराना चाहिए. तो बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो हमारे साथ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे थे जिनको हमने शायद यूके या कोई और मार्केट या कोई और इवेंट जो है वो रेफर कर दिया. या एग्जैक्टली. एंड दैट्स वेयर कस्टमाइजेशन कम्स इन, दैट्स वेयर वी केम इनटू प्ले, राइट. सो मोटिव एक वही है, राइट, टू आइडेंटिफाई कि किसकी कौन सी पोटेंशियल है. ये ना हो कि एक भेड़ चाल के पीछे सारे लग जाए. अगर सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जा रहे हैं तो पूरी दुनिया उसी पे चले जाए एंड इट्स गॉट वेस्टेड. नो, जिसका जो स्पेसिफिक सेक्टर है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर एक्सपोर्टिंग टू यूके, सो योर प्राइमरी मार्केट इज यूके, राइट. सो यू नीड टू गो देयर.
you need to attend those events to have relevant people. अगर आप यूरोप में चले भी जाएं, exactly. और adding to just 2 points of Azhar साहब, जिस तरह चैम्बर्स की बात की, चैम्बर्स आर वेरी मच फैसिलिटेटिंग, और बहुत सारे चैम्बर्स से हमारी कोऑर्डिनेशन भी है, ऑलरेडी ऑन बोर्ड भी है. या एग्जैक्टली. बट आई जस्ट रियली वांट टू रिक्वेस्ट मोर, लाइक कुछ ऑलरेडी हम कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स चैम्बर्स लाइक जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जांपल गुजरांवाला में, सियालकोट में, वजीराबाद में, ये वो इंडस्ट्री है जिसको रिक्वायरमेंट है टू गेट दैट रिकग्निशन. सियालकोट हमारा वन ऑफ द वंडरफुल दैट एक्सपोर्ट दैट वी आर डूइंग इज फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, राइट. इससे बड़ी प्रेस्टिजियस सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, मेडिकल में है, लॉट ऑफ अदर स्टफ, पोट्री में है, मुल्तान की आपको पता है कि कितनी वो खूबसूरत हमारी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं. वी नीड टू आइडेंटिफाई दीज. लेकिन इन सेक्टर्स को भी अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करके, अपने आप को थोड़ा सा रीब्रांड करके प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है. आई थिंक एवेन्यूज़ आर देयर, अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, और वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जस्ट राइट पीपल कम्स एट द राइट प्लेस और वो कनेक्ट विद द राइट माइंड्स, ताकि वो चीज़ें एक्सपीडाइट हो सके, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि आप एक जगह बैठे रहे एंड जस्ट सर्कल अराउंड द होल पाकिस्तान. अच्छा आप, और आई एम एडिंग टू दैट कि ई कॉमर्स ने इस पर बहुत अच्छा रोल प्ले किया, एंड सिंस वी आर गोइंग ई कॉमर्स बेस्ड इकोनॉमी एज वेल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब आपके बॉर्डर से बाहर जा रही हैं. इंटरनेशनली लोग अपने शॉपिफाई पे स्टोर्स बना रहे हैं, अपने डिफरेंट IT बेस्ड फोरम्स पे जो है वो अपने स्टोर्स वगैरह चला रहे हैं. सो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों ही बहुत ज़्यादा बूम कर रही हैं. लेकिन स्टिल यहाँ पे हमारी चैम्बर्स को, हमारी ट्रेड बॉडीज़ को, हमारी एसोसिएशंस को थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है. थोड़ा सा वो अपने आप को थोड़ा सा रीमॉडल करें, थोड़ा रीएडजस्ट करें अपने स्ट्रक्चर को इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द राइट पाथ टू कनेक्ट ऑल दीज बिजनेसेस जो उनके पैनल पे हैं, राइट. अगर एक लाहौर चैम्बर की अगर हम बात करें तो अगर 60-70 हज़ार मेंबर रजिस्टर्ड है सिंस द इंसेप्शन ऑफ इट, तो आई थिंक उस 70 या 60 हज़ार मेंबर को बड़ी राइट फैसिलिटेशन होनी चाहिए टू हैव दी राइट एक्सपोर्ट्स टू रेलिवेंट कंट्रीज, राइट. इसी तरह इस्लामाबाद चैम्बर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव coordination and collaboration with all the leading chambers of Pakistan, starting from Peshawar until ending it at Islamabad or maybe Lahore. So alhamdulillah, by so far we have achieved much, and there are a lot or more to achieve inshallah, and this is what we are looking forward to, very next chapters of UK Pakistan Business Summit, maybe Pakistan Business Summit on the sidelines of World Economic Forum, and a lot of other events that we're going to do, inshallah. You guys are already doing brilliant work in terms of having a diverse portfolio of you're catering to a variety of businesses, and you just spoke of smaller scale businesses as well, जिनमें बहुत untapped potential as of now. So where do you exactly see what kind of support, whether it's operational, क्योंकि हमारे पास resource का मसला तो नहीं है, तो what kind of support do you guys expect to get that will help you foresee including these businesses in the upcoming summits or forums, basic smaller scale ones as well? Before others respond to that, I just want to say one thing, that is the decision making. The very key point, we are very lack at making a decision on the right time. अब हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस थे जो कि बड़े स्टार्टिंग से, फॉर एग्जांपल वी हैव पिच्ड देम इन अगस्त में बी, एंड अब नवंबर या दिसंबर के एंड पे आके इफ दे हैव डिसाइडेड कि दे वांट टू पार्टिसिपेट, बट देयर इज़ अ प्रोसीजर दैट नीड्स टू बी डन बिफोर दैट, राइट. एंड अगर वो मिस हो जाएगा तो वी वोंट बी एबल टू अकोमोडेट एंड प्रोवाइड व्हाट वी आर एक्चुअली कमिटिंग, राइट. सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग देम ऑन बोर्ड, राइट. सो ये एक प्रॉब्लम है कि हम डिसीजन मेकिंग में बहुत लैक करते हैं. हम टाइम पे सोचते नहीं हैं कि इससे एडवांटेज क्या होगा हमें, और फिर जब लास्ट मिनट चीज़ें रह जाती तो वी डू दैट इन हरी, और वो उस हरी में फिर वी हैव प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स को फिर हम फेस करने को तैयार नहीं है, एंड देन इवेंचुअली द बिगर पिक्चर गॉट मिनिमाइज्ड, तो वो इम्पैक्ट हो जाती है. आई वुड लाइक अज़हर साहब टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन एज वेल. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट जो अभी आपने क्वेश्चन किया है, उसमें हमारे ऑलरेडी ये जो है उसमें है, और इसको हमने फोकस भी किया हुआ है. और क्योंकि आईटी का दौर है, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो आईटी में मर्ज कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है फैसिलिटेशन और जो है ना इन्वेस्टमेंट भी उन्हीं को जो है वो इट्स नीड उनकी ही है. इसके लिए हमने प्लान ऑलरेडी किया हुआ है, और इंशाल्लाह इन मार्च और अप्रैल इन 2026 वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अ 4 days इवेंट इन UK फॉर द IT स्टार्टअप्स, जिसमें हम सीड इन्वेस्टर्स के साथ बात की हैं हमने, और मेरा ख्याल है 200+ ऑन बोर्ड है उसके अंदर, वेंचर कैपिटलिस्ट उसके अंदर ऑन बोर्ड हैं. एंड सूनर इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हैव 2 to 3 इवेंट्स इन पाकिस्तान इन 2026 एज वेल, जिसमें एक हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, और वुमेन के लिए जो है स्पेसिफिकली हम उसमें एक एग्जीबिशन करने जा रहे हैं 2026 में, और जिसमें वुमेन ओरिएंटेड बिजनेसेस या वुमेन मैनेज्ड और वुमेन ओन्ड बिजनेसेस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा स्कोप होगा, और उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, होम बेस्ड इंडस्ट्री, उसके लिए हम जो है वो इवेंट कर रहे होंगे। और जहाँ तक रहेगी बात इंटरनेशनल इवेंट्स की, तो इंटरनेशनल इवेंट्स में जैसे मैंने आपको भी बताया कि आईटी पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, और 2026 में जो है वो इंशाल्लाह we are going to execute. There's a lot of impact driven work that you guys are doing. I think that's much needed in Pakistan's business ecosystem as of now specifically. Trends bhi bahut zyada change hote ja rahe hain, and I love that you guys are incorporating the entirety of the business landscape. You said कि आपके different events different locations पे हो रहे हैं, ठीक है? Of course makes sense, London में हो रहा है, but other than that you guys have any other reason to pick Switzerland or Davos or any other location? What do you guys leverage from these specific locations as well? मेरा ख्याल है कि अभी इस पे हमने डेवोस पे बात भी की है, और जो स्विट्ज़रलैंड में डेवोस पे रिप्रेजेंट करने का था वो तो गैप था, ठीक है, और बहुत बड़ा गैप था जिसको मेरा ख्याल है बहुत पहले ही जो है उसको फोकस कर लेना चाहिए था, और उस गैप को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट जहाँ पे 100+ कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, और जहाँ पे दुनिया का हर बिज़नेस लीडर है, जो इन्वेस्टर है, वो वहाँ पे मौजूद है, और पूरी दुनिया उससे फ़ायदा उठा रही है बाय साइनिंग और आफ्टर दैट मैच्योरिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट्स इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड पाकिस्तान इज़ नॉट देयर, ठीक है। और पाकिस्तान अगर है भी है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं बहुत अरसे से, लेकिन एक कंबाइंड एफर्ट, ठीक है, एक पाकिस्तान पेविलियन के तौर पे इमर्ज करना, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को दोनों को ऑन बोर्ड करके साथ लेके जाना, मेरा ख्याल है वी गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज ओवर देयर इन द लास्ट ईयर, और इसलिए इसको फोकस करना तो बहुत पहले से हम चाह रहे थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है जब हमने पाकिस्तान में यूके पाकिस्तान ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड को लॉन्च किया तो हमारा फर्स्ट इवेंट ही डेवोस में हमने रखा, क्योंकि हमारे फोकस पे हमारा विजन जो था वो ये था कि भाई वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को शोकेस करना है कि पाकिस्तान इज़ द नेक्स्ट tech destination as well, Pakistan is the next investment destination as well, and Pakistan is the emerging economy as well. So डेवोस को particularly hit करना ये वजह थी। उसके बाद सेकंड हम आ जाते हैं यूके में, क्योंकि यूके इज़ आर होम कंट्री एज वेल, ठीक है, आर हेड ऑफिस इज़ देयर, आर मैनेजमेंट टीम इज़ देयर, तो हमारा जो है यूके है वो सेकंड कंट्री होम कंट्री था। तो जब आपका होम कंट्री होता है तो आपको बहुत सारे लेवरेजेस वहाँ पे होते हैं, ठीक है, और यूके में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उस पाकिस्तानी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे भी मैंने आपको बता रहा था कि हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो आईबीपीसी के प्लेटफॉर्म से मेरा ख्याल है हम हर साल हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स कर रहे होते हैं, हम कोई एक इवेंट वहाँ पे मिस नहीं कर रहे, चाहे वो पाकिस्तान का 14th डे अगस्त सेलिब्रेशन है या 23rd मार्च रेजोल्यूशन डे है, हम वो भी वहाँ पे कर रहे हैं, हम वहाँ पे ईद मिलन पार्टीज़ भी कर रहे हैं, हम वहाँ पे इफ्तार डिनर भी कर रहे हैं। इफ्तार डिनर से मैं भी आपको बताऊँ कि मार्च में हम यूके की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इफ्तार डिनर जो है वो करने जा रहे हैं, 1500+, ठीक है, 1500+ जो है उसका फुटफॉल होगा, उसमें डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी है, और उसको भी हम जल्द लॉन्च करने वाले हैं उस डिनर को। तो मेरा ख्याल है हमने कोई भी सेक्टर जो है वो मिस नहीं किया हुआ, और उस पर हमारा फोकस है और हम वो कर रहे हैं। और इसी तरह से 2026 में हम यूएई और सऊदी मार्केट को रीच आउट करने जा रहे हैं। तो पेनिट्रेशन जो है वो यूके पाकिस्तान ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड की जो है वो ऑलरेडी चल रही है, और हम पेनिट्रेट कर भी रहे हैं, और नाउ वी आर entering the Africa as well. African market is the new emerging market, जहाँ पे बहुत सारी opportunities हैं, बहुत सारा जो है potential है वहाँ पे। तो हमने उसके लिए भी बहुत सारे MOUs और partnerships जो हैं वो sign की हैं। Do you see potential in terms of trade with Africa, and do we have existing gaps that there is a potential to fill? It's a big market, Africa is one of the leading markets nowadays, and the biggest continent on the earth. Of course. So 2030 की अगर हम बात करें तो till then, 5 years down the lane, Africa is booming in trade and investment, right? And a lot of projects are being launched there, और बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों का फोकस भी है, इवन इन इंटरनेशनल जो एक्सपोर्टर्स हैं या इम्पोर्टर्स हैं उनका भी। सो वन ऑफ द की लीडिंग डेस्टिनेशंस एज वेल। सो दैट्स व्हाई वी हैव प्लान एंड वी हैव आइडेंटिफाइड दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल टू मार्केट टू अफ्रीका। फॉर एग्जांपल हमारी अगर ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स चल रही हैं तो हम उसको मज़ीद फैसिलिटेट करें, मज़ीद इन्हांस करें, ताकि हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बढ़ सके। एंड जिस तरह अजहर साहब ने बात की कि हम मल्टी डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स को, या जिस तरह फॉर एग्जांपल यूके में हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, सो वी नीड टू हैव दैट कल्चरल इंटीग्रेशन एज वेल, जो हमारी रिफ्लेक्शन है आउट ऑफ आवर रूट्स, राइट।
पाकिस्तान को ब्रांड करना या प्रमोट करना इज़ नॉट जस्ट प्राइमरली फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, राइट? इट्स फॉर ऑल सेक्टर्स एंड इट्स फॉर ऑल डोमेन्स. फॉर एग्जांपल हमारी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, हमारी बैकग्राउंड्स क्या है, हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, इन सब को इंटैक्ट रखना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी वो जो सिग्निफिकेंस है, आपकी जो आइडेंटिटी है, वो कहीं सबमर्ज ना हो जाए, वो कहीं लॉस्ट ना हो जाए, वो कहीं. और डाउन द लेन जिस तरह पिछले फ्यू डेकेड से हम देख रहे हैं कि वी आर अ वेरी अडेप्टेबल नेशन एज वेल. हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी अडाप्ट भी कर रहे होते हैं, चीज़ें भी देख रहे होते हैं, और किसी न किसी जगह लैक भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है उसको हमें कहीं ना कहीं शोकेस करना ज़रूरी है. एंड दैट्स वाई वी केम अप विद दिस प्लान कि हम सेकंड पाकिस्तान बिजनेस समिट पे फर्स्ट डे जो एक पाकिस्तान नाइट रखें, और उसमें हम वो कल्चरल इंटीग्रेशन को भी शोकेस कर सकें, हम कम्युनिटी को कनेक्ट भी कर सकें, लोगों को बता सकें कि पाकिस्तानीज़ आर द मोस्ट हॉस्पिटेबल नेशन, द मोस्ट हॉस्पिटेबल पीपल, very lovely, very kind, and there's nothing like that what's being portrayed in the शाम रात 9 बजे वाले से आगे वाले सेक्टर में. वो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, बट ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट पाकिस्तान नीड्स टू ओवरकम. I think when you're engaging in an international platform, तो cultural representation or integration also plays a key role, क्योंकि at the end of the day it's going to be the sole representation of Pakistan that you guys are initiating. So hats off for that. मैं ये समझना चाह रही हूँ कि with your inclination towards investing in Africa, covering Africa as well, I see that there is a lot of future prospecting as well that you guys do, and it's again a very holistic kind of work that's happening at UPTIB. I want to understand कि event के बाद what kind of support do you guys provide to the participants? I think मैंने ये पहले पूछा भी है, but I just want to solely highlight this question, this part right now, कि during the event we know कि networking होती है, collaboration होती है, they can there's matchmaking, so there are collaborations built right there and then. But if the participants need any kind of support post event, what does UPTIB does in that regard? आई थिंक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है ना, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, वो पोस्ट इवेंट एक्टिविटीज़ ही हैं. ठीक है, किसी भी इवेंट को लॉन्च करना बहुत आसान है, लोग इकट्ठे करना बहुत आसान है, आप एक सक्सेसफुल इवेंट भी कर देते हैं, ठीक है, उसकी हाइप क्रिएट भी आप कर लेते हैं, लेकिन जो आउटकम है ना, वो पोस्ट इवेंट एक्टिविटी से ही आप लेते हैं. इसको एग्जांपल और मैं रिलेट इस तरह करूँगा कि जब हमने पाकिस्तान बिजनेस समिट 2025 किया, ठीक है, और उसके बाद पोस्ट इवेंट जो हमने एक्टिविटीज़ की या लोगों को अपने साथ इंटैक्ट रखा, ठीक है, और उनके जो जितने भी उन्होंने जो भी उनके साथ जो हुई थी इंट्रैक्शंस हुई थी डिफरेंट लोगों की, या जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उनको फुलफ़िल होने तक हम उनके साथ थे, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे थे. शायद यही वजह है कि आज 50% वो लोग हमारे साथ दोबारा पाकिस्तान बिजनेस समिट में सेकेंड टाइम जा रहे हैं. ठीक है, सक्सेस स्टोरी थी तो आज चैम्बर हमारे साथ ऑन बोर्ड हुए हैं. ठीक है, तो पोस्ट इवेंट एक्टिविटीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड वी हैव प्लान्ड दोज एज़ वेल कि हमने किस तरह से लोगों को बाद में फैसिलिटेट करना है. और मेरा ख्याल है कि मैच्योरिटी और एग्जीक्यूशन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है ना किसी भी चीज़ में. आप किसी भी चीज़ को वो कर लेते हैं, लॉन्च तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको सस्टेनेबल रखना, ठीक है, और टिल द एंड ऑफ द मैच्योरिटी उसके लिए काम करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो हमारे जितने भी डेलीगेट्स हमारे साथ जा रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग से लेके अभी हमने आपसे डिस्कस किया, और मैच मेकिंग है, उनकी बिजनेस नेटवर्किंग मीटिंग्स हम अरेंज कर रहे हैं, और उसके बाद उस पर फॉलो अप रखना, ठीक है, और उसको किसी सर्टेन लेवल पे जाके मैच्योर कराना उन डील्स को, ठीक है. तो UPTIB इज़ स्टिल देयर. वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. अगर हम कोलैबोरेशंस की बात करें, क्योंकि एवरीथिंग अबाउट दिस इवेंट इज़ अराउंड कोलैबोरेशन, राइट? लोगों को बहुत सारी कोलैबोरेशन करने का मौका मिलेगा, बट who are you guys exactly collaborating with? I was looking at the breakdown of your event and I saw कि कुछ Swiss officials के साथ भी collaboration हो रही है, फिर Federation of Pakistan is also participating. So who are the key collaborators of this event for you guys? Okay, starting from the mother body, because FPCCI serves as a mother body for all the chambers of Pakistan. ठीक है, लाहौर चैम्बर है, इस्लामाबाद चैम्बर है. जब मदर बॉडी आ गई है तो मैं कहूँगा कि सब चैम्बर्स हमारे साथ कोलैबोरेशन में हैं, ठीक है. एंड we do have the representation from all chambers, right? या और हमने पिछले 2 साल में, मेरा ख्याल है ये हमारी सक्सेस स्टोरी है, ये अचीवमेंट है, एंड आई एम प्राउड टू से दिस कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई ऐसा चैम्बर जो है वो हमारे साथ नहीं हमने छोड़ा जिसके साथ हमने MOU साइन नहीं किया, जिसके साथ हमने पार्टनरशिप नहीं की, स्टार्टिंग फ्रॉम द खैबर टिल कराची. सो वो लाहौर चैम्बर हो, वो गुजरात वाला चैम्बर हो, उसके बाद पेशावर चैम्बर है, इस्लामाबाद चैम्बर है, दे ऑल आर पार्टिसिपेटिंग
ठीक है, हमारे साथ इस वक्त ऑन बोर्ड है. FPCCI is our supporting partner. President FPCCI is leading the delegation and representing all the chambers. तो FPCCI की अम्ब्रेला के अंडर सारे चैम्बर्स हैं, तो मैंने इसलिए FPCCI को ज़्यादा नॉमिनेट कर दिया. उसके बाद हम आ जाते हैं तो पाशा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड हमारे साथ है, PSAB हमारे साथ है, पाशा जो सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है वो हमारे साथ है, कोलैबोरेशन में है हमारे साथ. कॉर्पोरेट सेक्टर में से बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में से. आप हॉस्पिटैलिटी उठा लें तो 9 ट्री होटल एक चेन है, वो हमारे साथ है. फर्नीचर इंडस्ट्री से उठा लें तो चेनवन इज़ अ पार्टनर. उसके बाद क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ट्रिलियन ट्रीज़ हमारे साथ है, रोटरी इंटरनेशनल हमारे साथ है. हम बहुत ज़्यादा सोशल वेलफेयर और ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं. एकेडमिया को उठा लें तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी इन द पाकिस्तान. सो उनकी हमारे साथ रिप्रेजेंटेशन है. दे आर कोलैबोरेटिंग विद UK पाकिस्तान ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड. और उसके साथ हमारे साथ ट्रेनिंग्स में बात करें तो PNY ट्रेनिंग्स हैं हमारे साथ. सो उसमें हम फूड्स में आ जाएँ तो आई थिंक शान बनास्पति इज़ पार्टिसिपेटिंग. तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जो हमारे साथ जा रहे हैं. एकेडमिया हो गया, IT सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, लाइफस्टाइल हो गया. तो मेरा ख्याल है कोई भी सेक्टर जो है हमने मिस नहीं किया. और दे आर पार्टनरिंग विद अस इन दिस पर्टिकुलर फोरम. और इसके साथ साथ इंटरनेशनल बात करें तो बहुत सारे ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं. हमारे साथ स्विस चैम्बर ऑन बोर्ड है, हमारे साथ वो Swiss Uganda Chamber of Commerce, for example, European Economic Summit, University of Zurich, Swiss Business Council is promoting this event as well. So ये वो सारे जो इंटरनेशनली स्विस कम्युनिटी के मेंबर्स या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हम रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली आपकी शायद एक्सेस उस लेवल तक नहीं हो सकती. आप बीइंग सिटिंग इन पाकिस्तान यू कांट डायरेक्टली रीच टू स्विस चैम्बर एंड डायरेक्टली टॉक टू द प्रेसिडेंट मे बी ओवर देयर टू फैसिलिटेट एंड टू आइडेंटिफाई दोज पीपल हु आर गोइंग टू be beneficial for you, right? So इस तरह की organizations में from the international side of course we are participating. जिस तरह we have named a few of course, और इसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा, जिस तरह United Nations की ITU की बात की, इस तरह और बड़े different forums पे हम as a partner, as a supporting promotion partner, marketing partner and a lot of other venues पे हम जा रहे होते हैं and collaborate कर रहे होते हैं. एंड दैट्स द की ऑफ कोर्स. अगर आप उसको इस तरह देखें तो वो की है इस सारे फैक्टर की कि जब तक आपकी एक्सेस टू द राइट पीपल विद इन द राइट सेक्टर्स नहीं होगी, आप उन चीज़ों को फैसिलिटेट वट एवर यू हैव टू सेल आप नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल यू हैव द मेजोरिटी ऑफ इट, राइट? और आपको वहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए, चीज़ों को एक्सपीडाइट करने के लिए, इवन आपकी रिकमेंडेशन ही देने के लिए यू नीड समबडी आउट देयर, राइट? सो उस चीज़ों को लिए तो हम ऑफ कोर्स वी वेलकम एवरीबडी एंड इवन फ्रॉम द पाकिस्तान साइड एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल साइड एज वेल टू जॉइन हैंड्स टू जस्ट collaborate, एंड दिस इज़ द वर्ड ऑफ collaboration ओनली. नोबडी कैन टेक अ सोलो फ्लाइट ऑनेस्टली, और वो सोलो फ्लाइट में टू सम एक्सटेंट तो आप जा सकते हैं बट ग्रोथ डज नॉट हैपन and eventually you deplete, right? So to be sustainable, to be a organization, a brand, or maybe a company or a business who wants to stay in the longer run, who wants to be in the big game, they needs to identify and they need to make sure that you are collaborating with every and each single opportunity that you're going to get, and to take your hands on that so that you can prosperous, you can have better financial outcomes as well, you can seek your objectives and motives as well. I think it brings in a lot of support for any business as well, I think, which is very, very critical to survive. Aapke collaborations mein, I see that there's a vast coverage happening, okay? And I feel like that is the core of this entire event, right? And it's also a huge privilege for you guys to have earned the confidence of these international collaborators. True, that's the biggest challenge as well, being representing a Pakistani sector, having existence from the UK, being the parent company, being in UK and then having in Pakistan, and then with all other odds, you are just getting their trust and they are putting their faith in us to represent themselves in Pakistan and maybe UK. So that's a big thing as well, and this is not what I think anybody can do very easily, or maybe this is very something difficult to achieve, right? The biggest barrier as well, which is why you guys seem to have the spine to have done it and be the first ones to do it. Pakistan ke collaborators ko bhi agar hum dekhen to I see that there is this is very optimistic
so many local collaborators, whether private or public, are on board with you guys as well. So in that regard, do you guys see a trend shift coming up in terms of Pakistan's business landscape and its eventual impact on the economy? Do you see these organizations being more inclined towards such initiatives? Agree. I totally agree. There is a shift. वो देर आए दुरुस्त वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन ये है कि वी नीड टू एटलीस्ट फिगर आउट दिस थिंग दैट राइट टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, वी ऑलवेज हॉप ऑन टू द लास्ट ट्रेन. That's what we should not do as a nation, as a business. हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि we should be the first ones to grab any opportunity that comes in. For example, अगर हम बात करें क्रिप्टो की, ब्लॉकचेन की and a lot of other things, तो अब जाके we are considering to adopt these kind of things, and उस पर resolutions भी हो रही हैं, उस पर approvals भी हो रहे हैं, government भी focus कर रही है and a lot of things. But दुनिया already इस पे shift हो चुकी है. People are already moving on that. वो उस पर businesses कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को डबल कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं. सो आई थिंक ट्रेंड इज़ शिफ्टिंग, बट ये है कि उसको विद राइट पीपल एंड विद द बेटर प्रोजेक्शन फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, लाइक प्रोजेक्शन फॉर एग्जांपल स्टार्टअप पाकिस्तान जैसे इनिशिएटिव जिस तरह हैं, जो इस चीज़ को मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं, मज़ीद हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ऑफ कोर्स रीच है, आप मैसेज में जो है वो लोगों को रीच आउट करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज मीडियम एंटरप्राइजेज एज वेल. सो आई थिंक वो पेनिट्रेशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट एंड वो मैसेज कन्वे होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसको जितना मैसिव लेवल पे हम प्रमोट करेंगे, उतनी जल्दी ये ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, उतनी जल्दी हम ये गैप कवर कर लेंगे, उतनी जल्दी वी विल बी ऑन द राइट पाथ टू मूव टुवर्ड्स success. I also want to understand कि other than the networking opportunity, you guys must have some panel discussions or कुछ industry representation भी होगी, right? So which industries are being represented mainly, and for people who will be there, what kind of knowledge or information they can walk back with? Primarily, if I talk about the organizations and तो सिंध से हमारे साथ सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, उनके मिनिस्टर जो हैं सैयद नवीद कमर साहब, ही इज़ एक्चुअली गोइंग टू पार्टिसिपेट, और ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ दैट लाइज इन सिंध प्रोविंस, राइट? And last time they participated with us as well, and this time they approached us again and asked to have that forum, and we really want to participate and bring out businesses who have potential within the Sindh sector as well. Similarly goes for Punjab, KPK, Gilgit Baltistan, and a lot of other provinces of us as well. I think one of the key sectors is this, right? और secondly, I would like Azhar साहब to identify कि panel discussions जो हैं वो कौन सी important हो रही हैं, उसमें कौन कौन से लोग या entities जो हैं वो participate कर रही हैं, to talk about a few topics as well. And I do have agenda with me right now. Having the panel discussions, actually, we are focusing on AI, IT, leveraging digital solutions, business competitiveness, mines and minerals, oil, gas investment opportunities. Then we have a renewable energy, climate change and infrastructure. We are going to talk about the tourism, marketing, integration, technology, joint ventures and partnerships between the Switzerland, Pakistan as well. So the primary, and I think this is also the agenda and on the top list of the World Economic Forum as well, talking about, the AI and integration as well, the climate change and sustainability. So we are focusing on these topics. This is mainly composed of the leading industries जो हमारे export landscape में इस वक्त नज़र आ रही हैं. जो भी dynamics और trends हैं उसको देख. This certainly seems relevant. If we move towards conclusion. Yeah, we should. I think it's one of the longest podcasts that we ever had. So tap on. So इसलिए मैं भी forcefully इसको conclude करूँगी, and I'm just gonna give you both an opportunity to tell whatever is left. Okay. Maybe. And for anyone who is already participating or intends to participate, what does the forum bring? What is the summit all about? Just. I just want to request and, to thank everyone who is on board, and just want to request everyone, single individual or the business who is left and not be a part of Pakistan Business Summit right now, because it's the right time to join hands. And we as a UK Pakistan Trade Investment Board are more than, welcoming to join hands with anyone. We are not in competition, and this is the right time to join hands because we strongly believe on collaborations rather than competitions. और मेरा ख्याल है कि अब आजकल जो दौर है वो है भी collaborations का, and this is the right time to convert our energies into a one meaningful and impactful synergy. So if we are looking forward to have a prosperous Pakistan, then we should join hands together
to represent Pakistan and to showcase your potential and be Pakistani, and proud to be a Pakistani. Thank you. From my side, of course, I would like to thank everybody who have joined us and who have joined hands with us with UK Pakistan Trade Investment Board, specifically for the second Pakistan Business Summit, especially to Startup Pakistan for giving us this opportunity to speak about all these things, because there is very much, things difficult for people to understand when they are not actually getting it from the right people and having the right information, right? And वो किताबों में या डॉक्यूमेंट्स में तो शायद आजकल हम वैसे ही नहीं पढ़ते, वो सिर्फ गो थ्रू करते हैं, हम हमारा अटेंशन स्पैन ही शायद 5 सेकंड का तो जस्ट स्कैन ही कर लेते. लेकिन आई होप एवरीबडी वुड लिसन टू दिस पॉडकास्ट एंड दे वुड बी हैविंग द होल concept behind this whole initiative as well, and to participate. And I would encourage everybody, especially if people from Hem Textile who are actually participating in a textile exhibition in Frankfurt, Germany, that is happening on the same days. We have actually reached out to them. That is sector specific exhibition, and almost 170 companies from Pakistan are participating in that particular, and we have approached and sent out invites to them as well to do join the World Economic Forum sideline events, and do join Pakistan Business Summit as a delegate, maybe as an attendee, and just see how Pakistan shines at the World Economic Forum. Thank you so much, Azhar. I am so certain that this experience is going to be lucrative, beneficial for all the participants, all the businesses coming in, and also for the ones that are not able to. I am pretty sure that you guys are continuously trying to, do wonderful things, take amazing initiatives in terms of Pakistan's business landscape as of now. And thank you so much for coming and elaborating on all the details. I'm very sure that all this information will provide a very clearer picture of the summit to anyone who's listening. Thank you so much for having us. Thank you. Absolutely, inshallah. And let's hope for the best.